So let's start today's session with a brief introduction to the what we did in the last class. So we have seen the web crawlers, and we discussed that web crawlers need to look at the robots.txt file to know that what to crawl and what not to crawl. So in today's session, we will again go through all those uh, part again. So the content which the crawler has seen till it has crawled, when it has started crawling. So we know that many of the content is duplicate or even triplicate. Only 30% of web is original, rest of content is duplicated. And if a particular page having obviously having a different address, different uh, web address, if it is just fetched and it is already in index, so we need not to further process it. So this duplication need to be taken care. So this we have seen in the before that we can find the duplicates using shingles, and so in that lecture we have discussed that how to detect the plagiarism. So this is very essential for the web crawler because only 30% content they may be looking at the which is original. So it means that they need a regular filters. They need to use a regular expression for URLs to be crawled or not, and they need to look upon this file robots.txt, which is in every must be in every web server, and before crawling they must look at this website, and usually web server maintain this for web crawler maintain this for the each web server. They do not keep on fetching again and again. They know that which web server allow what kind of things. Only very periodically, maybe after 1 month or so, they again fetch it, but they need not to fetch it repeatedly. So rather than consuming bandwidth to keep on fetching every time roboto.txt, they know that what a particular web server is offering and what it doesn't. So these files are cached. These are always in the cache. And before going to the web crawler or web server, the web crawler go through this particular file of a web server to know what can be fetched and what cannot be fetched. So this helps them to create a queue to know that what need to be fetched and what need not to be fetched. Then obviously duplicate URL eliminations, because one website, let's say this is pointing to page A, and this website is pointing to page B, this link. Now this website is also pointing to the page B. So page B we can visit either from this website originally, or through this link, or through the A link. So again, these links are coming again and again from the different sources. Maybe again from this website again it is linked to B. Maybe again another website is linked to page B. So we need to eliminate the same URL again and again. So for a non-continuous crawl, that is, we need to see that if particular URL has already been passed to the frontier node. So same URL may be passed many times through the many web pages. So we have to read only once this. We need not to read it again and again. So for a continuous crawl, have to see now we have to see that how to implement it, because same URL can be there in the all the website, and when we are crawling, we need not to fetch it again and again. So we will devise a strategy which we will discuss right now. Further, your crawler must be distributed. We know that the size of the web is very high. So obviously there is not one crawler, but the multiple crawlers are there. So one thing is they must be continuous. They must not visit the same page again.
so not visit the same page again. And another thing is they are distributed. So what it suggests that कि इसको implement करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक common queue बनानी पड़ेगी. कॉमन कोई डाटा स्ट्रक्चर होगी, कॉमन कोई क्यू होगी. अब जो ये मल्टीपल थ्रेड्स है, ये कॉमन, ये बार बार सेम पेज को विजिट ना करें. ऐसा ना हो कि पहले क्रॉलर ने भी उसी पेज को विजिट किया, दूसरे ने भी किया. तो दे मस्ट लुक एट सम कॉमन क्यू टू नो दैट कि कौन सा नेक्स्ट पेज विजिट करना है. और इस कॉमन क्यू को बनाने के लिए हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इसमें सिर्फ यूनिक पेजेस ही हैं, डुप्लीकेट पेज ना है. वी मस्ट मेंटेन दिस कॉमन क्यू. कई बार तो हम जो मल्टीपल क्रॉलर्स थ्रेड्स होते हैं, दे आर एट डिफरेंट वेब सर्वर एट डिफरेंट लोकेशंस, ताकि वो सेम पेज को विजिट ना करें. बट सम इवन इन दैट केस वी हैव टू मेंटेन दिस क्यू. सो अब इसमें बार बार सर्च नहीं कर सकते कि जब क्यू में कोई एंट्री कर दी, कैन नॉट कीप ऑन सर्चिंग कि वो पेज पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं है. सपोज इसमें क्यू में पहले से 10,000 एंट्रीज हैं. We want to enter one more URL, so we cannot search whether it is already there or not. तो हम कोई हैशिंग टेक्निक यूज करेंगे टू नो वेदर उसकी हैश वैल्यू वाला पहले से है कि नहीं है. तो rather than नॉर्मल लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च करने के बजाय we will use hashing and then partition the queue and then give different URL to the different crawlers to visit the pages. Now, how do these nodes communicate? So this is the major challenge. So this is the challenge that we need to address today. That how, if I have 100 crawlers, how they communicate to each other using a common queue to tell that what should be crawled next, and without any duplicate URL visit. So this आर्किटेक्चर वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, कि जैसे हमारे पास कोई वेब पेज आएगा, वेब पेज हम डीएनएस से उसका आईपी एड्रेस निकाल लेंगे. सो डीएनएस से पूछेंगे कि हमें उस यूआरएल का आईपी एड्रेस क्या है. उससे जो एचटीएमएल पेज आएगा उसको हम पार्स करेंगे, उससे हमें डिफरेंट हाइपरलिंक मिल जाएंगे उस वेब पेज में, जितने भी हाइपरलिंक्स हैं. सो उन हाइपरलिंक से हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो बताएगा कि वेदर वी हैव ऑलरेडी विजिटेड और नॉट. सो उसको हम जो भी डॉक्यूमेंट पहले से फेच पेजेस हैं उनसे कंपेयर करेंगे कि क्या हमने वो पेज देखा है या नहीं देखा. सो ऐसा पॉसिबल है कि यूआरएल तो डिफरेंट है बट पेज सेम है. मे बी जैसे हमने कोई एक रिसर्च पेपर है, 2 जगह पे है, यूआरएल डिफरेंट है बट अंदर का कंटेंट सेम है. तो यहाँ पे हमें डुप्लीकेट एलिमिनेशन का यूजिंग द डॉक्यूमेंट हमें लगाना पड़ेगा. फिर हम रॉबर्ट्स फिल्टर्स भी, जो वेब सर्वर अलाउ नहीं कर रहा, वो वाले यूआरएल फिल्टर कर देंगे. जो हमें लग रहा है कि वेब सर्वर इज नॉट अलाउइंग, वी विल फॉलो द एथिक्स एंड वी वोंट विजिट दोज पेजेस व्हिच वेब सर्वर डू नॉट वांट अस टू विजिट. वो फिल्टर करने के बाद नाउ यहाँ पे आके ये पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था. सो यहाँ पे आके हम अब डिफरेंट क्रॉलर्स को डिफरेंट यूआरएल्स देंगे. सपोज हमारे पास यूआरएल फिल्टर करने के बाद 10,000 यूआरएल्स हमें विजिट करने हैं, तो हमें 10 होस्ट में डिवाइड करना है. तो हम सबको 1000 स्प्लिट करके दे देंगे. एंड दे विल आल्सो एलिमिनेट डुप्लीकेट यूआरएल को भी हम एलिमिनेट करते जाएंगे. सो ये सारे के सारे जितने भी 1000 crawlers हैं, they will 10 crawlers हैं, they will visit 1000 pages, they will eliminate URLs and maintain this URL frontier queue. So this is a common queue. हमेशा यहीं से ही नया वेब पेज फेच कर करके हम पास करते जाएंगे. So in this way the full architecture will work and the communication is happening using this shared memory. ये shared memory होगी और and accordingly यहाँ पे आगे processes divide हम कर सकते हैं. So this can be implemented using the MapReduce architecture as well.
where mapping part is done by this full part, जिसमें हम mapping कर रहे हैं, and reducing part is done using the URL frontier. So इस तरह से हम हर host को, हर crawler को बता रहे हैं कि उसने कौन से web page visit करने हैं, and we are also maintaining a common queue to maintain all these things. So since this architecture is difficult to maintain, so इसी में कई सब architecture use होते हैं. So उन सब आर्किटेक्चर को यूज करने के दो रीजन हैं. सो एक तो पोलाइटनेस, वी डू नॉट वांट टू हिट ए वेब सर्वर टू फ्रीक्वेंटली. ऐसा ना हो कि एक ही वेब सर्वर, सपोज पीयू के वेब सर्वर पे सपोज मॉर्निंग में 10 crawlers start accessing the pages and each crawler want to access each page. So we do not want that one web server is being hit so many times that it is counted as a denial of service. ऐसा ना हो कि नॉर्मल यूजर को तो एक्सेस नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्रॉलर एक्सेस कर रहा है. सो पोलाइटनेस होनी चाहिए. देन फ्रेशनेस, सो क्रॉल न्यू पेजेस सो मोर ऑफन देन अदर्स. एंड अब कई पेजेस तो अपडेट होते रहते हैं, जैसे न्यूज साइट्स तो हर मे बी 1 minute इट इज कीप ऑन अपडेटिंग. सो इनको तो हमें बार बार विजिट करना ही पड़ेगा. क्रॉलर्स को दे हैव टू कीप ऑन गोइंग. सो यानी कि कुछ पेजेस तो बार बार विजिट करने हैं, बट कुछ पेजेस को मे बी पंजाब यूनिवर्सिटी का पेज तो once in a day, so which need to be visited, or maybe once in a 3 days or once in a 4 days, because it is not updated too frequently. But a news website page is being updated every minute, so it need to be visited again and again. So ये दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यानी हमें दो क्यू बनानी पड़ेंगी. सिंगल क्यूज में ये मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा. एक क्यू मेंटेन करेगी कि किनको पोलाइटनेस मेंटेन करेगी, एक फ्रेशनेस मेंटेन करेगी. सो वी हैव टू मेंटेन द टू क्यू. सो दैट वी विल डिस्कस नाउ, दैट हाउ टू मेंटेन टू क्यूज. So politeness is obviously challenge even if we restrict only one thread to fetch from host. So क्योंकि काफी crawler बनाए हमने, so वही पेज मल्टीपल crawler के कारण वही पेज बार बार विजिट हो सकता है, तो इसको मेंटेन करना भी मुश्किल है. So common heuristic क्या है? Insert time gap between the successive request to a host. वो एक टाइम मेंटेन करके रख सकते हैं कि इतने टाइम के बाद लेना. तो यानी हर पेज के साथ एक टाइम का एक फैक्टर होगा विच टेल्स कि नेक्स्ट टाइम कब विजिट करना है. या काउंटर हो सकता है, तो जब भी क्यू मेंटेन करेंगे काउंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा. जैसे सपोज पहली बार जब pju.ac.in क्यू में आया, इसके साथ हमने काउंटर लगाया 20. जब नेक्स्ट टाइम क्यू अपडेट हुई, इसको हमने 19 कर दिया. नेक्स्ट टाइम फिर क्यू अपडेट हुई तो इसको 18 कर दिया. तो यानी कि अगर 20 बार क्यू अपडेट होगी, only after that we will visit this. So we will visit only those pages having counter 0. इस तरह से काउंटर भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई कॉमन हेरोस्टिक भी हो सकता है. So since whenever you listen heuristic, you will say this is open research area. यानी कि किसी भी somebody can come up with a better technique कि किस तरह से किस पेज को कब विजिट करना है, कितनी बार करना है, और ताकि क्यू भी मेंटेन रहे और क्रॉलर भी चलते रहे और कंटेंट भी अपडेटेड रहे. तो दिस इज ओपन रिसर्च एरिया. नाउ दिस इज scheme that we will discuss is called the Mercator scheme. So this is a very popular scheme and we will discuss right now. This is one of the way to maintain these queues. So इसमें पहले तो बैक क्यूज बनाई जाती हैं. बैक क्यूज हर वेबसाइट की होगी, हर वेब सर्वर की एक होगी. सपोज pju.ac.in है, इसकी एक बैक क्यू होगी विच विल मेंटेन कि pju.ac.in के अंदर और कौन कौन से लिंक को विजिट कर रहे हैं. मे बी pju.ac.in हैज 100 URLs, 100 हाइपरलिंक्स है, बट बैक क्यू के अंदर मे बी वी कैन कीप ओनली 10. ये डिसीजन हमें लेना है डिपेंडिंग अपॉन robot.txt कि वो कौन से पेज कह रहे हैं, एंड आल्सो वी हैव टू मेंटेन कि कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करना है
सो एक फंक्शन बना के रखना है जो बैक क्यू में से बताएगा कि pg.ac.in को कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करना है। सो बेस्ड ऑन बैक क्यू हमें एक लिंक्स देगा। उन लिंक्स के बेस पे हम एक फ्रंट क्यू बनाएंगे जो इज द सेम एज अ यूआरएल फ्रंटियर। सो अब जितनी भी बैक क्यूज हैं, सपोज नंबर ऑफ बैक क्यूज होंगी बी, जितने भी होस्ट हैं, जितने भी वेब सर्वर हैं, उतनी बैक क्यूज होंगी। हर बैक क्यू के साथ जितने भी विजिट कर सकते उतने फ्रंट क्यूज बन जाएंगे। सो बी बैक क्यूज और हर बैक क्यू के साथ के फ्रंट क्यूज बन जाएंगे। फ्रंट क्यूज आर द सेम एज ए यूआरएल फ्रंटियर्स विच रिप्रेजेंट्स कि कौन सा यूआरएल अभी विजिट करना है, और उसमें से एक प्रायोरिटाइजर होगा जो बताएगा कि कौन सा यूआरएल हमें विजिट करना है। सो जैसे यूआरएल आएगा वो फ्रंट क्यू में भी जाएगा। फ्रंट क्यू से हम उसमें जैसे सपोज pg.ac.in आया किसी वेबसाइट से, अब हमें इसको विजिट करना है, प्रायोरिटाइजर उसको फ्रंट क्यू में डालेगा। फ्रंट क्यू से बैक क्यू में डालेंगे वो वाले पेजेस जो pg.ac.in से जुड़े हुए हैं और जिनको हमें नेक्स्ट विजिट करना है। सो इन दिस वे व्हेन ए क्रॉलर पिक एनी पेज फ्रॉम द फ्रंट क्यू, जब भी वो कोई पेज विजिट करेगा वो उसकी बैक क्यू में देखेगा कि अगले 10 पेज कौन से विजिट करने और कितना फ्रीक्वेंटली करने। So in this way we will use two queues, front and back queues. So I will discuss in the next slides that what is actual meaning of this. So यानी कि Mercator URL frontier में now we have two queues that we will maintain, front and back queues. So front queue manages prioritization कि next क्या विजिट करना है, बैक क्यूज कि उस वेब सर्वर पे क्या क्या विजिट कर सकते हैं, उस वेब सर्वर पे या उस पेज के साथ और क्या क्या विजिट कर सकते हैं। सो फ्रंट क्यू इज द नॉर्मल यूआरएल फ्रंटियर व्हिच टेल्स व्हाट टू विजिट नेक्स्ट, एंड बैक क्यूज दे इन्फोर्स कि अगर उस वेब सर्वर पे चले जाते हो आप तब और क्या क्या विजिट करना है और कितने फ्रिक्वेंटली विजिट करना है, एवरीथिंग इंफॉर्मेशन इन द बैक क्यू। सो बैक क्यू से हम उस वेब सर्वर की पोलाइटनेस मेंटेन करेंगे, and front queue is same as the URL frontier. Each queue is first in first out, but this is not time based. Not time based. This is the priority based. These are the priority queues. So first in first out यानी कि जिसकी priority higher है उस priority queues हैं. These are not इनको टाइम से टाइम डिमेंशन नहीं यूज हो रही, प्रायोरिटी वाइज इनको यूज कर रहे हैं। सो प्रायोरिटाइजर होगा फ्रंट क्यू में, ये मेंटेन करेगा प्रायोरिटी कि किसको मेंटेन करना है। कितनी फ्रंट क्यूज होंगी, देयर आर के फ्रंट क्यूज। वाई के, बिकॉज ऑफ के क्रॉलर्स होंगे हमारे पास। हर क्रॉलर अपनी एक एक फ्रंट क्यू में से जो नेक्स्ट यूआरएल है वो फेच करेगा और उसके पेजेस लेके आएगा, उसके पेजेस वो अपनी क्यू में डालेगा और उसकी क्यू से एक बैक क्यू मेंटेन होगी। उस बैक क्यू में वी विल मेंटेन कि उस सर्वर पे आगे कौन से पेज विजिट कर सकते हैं। सो उस वेब सर्वर पे आगे कौन से पेज विजिट होंगे। सो दीज बायस फ्रंट क्यू सिलेक्टर से बैक क्यू पे जाएंगे हम, यानी कि हर हमें यूआरएल फेच जैसे करेंगे कि ये हमें यूआरएल विजिट करना है, हम पहले बैक क्यू में देखेंगे कि उसके अंदर और कौन कौन से पेजेस विजिट किए जा सकते हैं। So prioritize, assign a URL and integer priority between 1 and 3. Append URL to corresponding queues. अब इसमें कई ह्यूरिस्टिक हो सकते हैं प्रायोरिटी असाइन करने के। सिंपल है टाइम कि जो पहले आया उसको पहले करो, बट देयर कैन बी मेनी वे टू असाइन प्रायोरिटी। जैसे रिफ्रेश रेट, जैसे न्यूज वेबसाइट की ज्यादा प्रायोरिटी होगी। एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो सकती हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे न्यूज वेबसाइट्स हैं वो तो ओपन है ही है, बट पर्टिकुलर वेबसाइट को जिसको हमें बार बार विजिट करना है, कोई रिजल्ट वेबसाइट है जहाँ कोई जिसमें लोग, कोई ब्लॉग है जिसमें लोग ऐड ऑन करते हैं,
कोई रिसर्च जर्नल्स की वेबसाइट है, तो रिसर्च जर्नल की वेबसाइट, लेट्स से जर्नल सेल्स की दे अपडेट ऑन 1st of every month, तो वो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेगी। सिमिलरली कोई यूट्यूब जैसी वेबसाइट है विच इज अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स इन सेकेंड, तो उसको तो क्रॉल करते जाना बार बार, तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू असाइन द प्रायोरिटी। सो दिस इज अगेन है ओपन एरिया कि हर क्रॉलर अपने वे से प्रायोरिटी असाइन करता है और उसी के बेस पे सर्च इंजन की स्पेसिफिसिटी रहती है। ये आपको तब आप इस चीजों को बेटर कर पाओगे। सो व्हेन यू आइदर यू राइट ए ब्लॉग और देखोगे कितनी देर में सर्च इंजन के पास आता है, सर्च इंजन उसको फाइंड आउट कर पाता है उसके कीवर्ड्स। अपने ब्लॉग में कोई ऐसा कीवर्ड रखो विच इज नॉट कॉमन एंड देन सी की हाउ मैनी डेज टेकन बाय द सर्च इंजन टू डू दैट। जहां जब आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, so when you publish a research paper and it is visible on journal website, वहां पे दिख रहा है, बट गूगल में टाइप करने पे नहीं आ रहा, so then check कि how many days Google has taken it. So वहां से आपको लगेगा कि it means कि Google crawlers are not keep on going to that web server to open. So कुछ जर्नल में तो immediately आ जाएगा within a day or so, कुछ जर्नल ऐसे होंगे जिनमें 7 days 10 days के बाद आएगा। So then you will realize that कि how Google is doing that and how many times academic dot Microsoft is taking for the same। अब कई बार हमारे जो पेपर्स होते हैं वो स्कोपस में इट टेक समटाइम्स आफ्टर 1 month दे स्टार्ट गेटिंग विजिबल। गूगल में 3-4 दिन में आ जाते हैं, एकेडमिक डॉट माइक्रोसॉफ्ट में भी 7-8 दिन में आ जाते हैं, बट स्कोपस में आफ्टर 1 month आते हैं। So it shows that how their crawler works and how frequently they visit the website and how frequently they update themselves. अब बैक्यू कैसे मेंटेन होगी? बैक्यू इज फॉर द डिफरेंट वेब होस्ट, डिफरेंट वेब सर्वर के लिए बैक्यू बनेगी। So when a backyard request a URL, it picks a front queue from which to put the URL. So this choice can be round robin, बैक्यू में से राउंड रॉबिन बेस भी हो सकता है या प्रायोरिटी भी हो सकती है। वो that is again up to the implementer or the web crawler that how to implement, or can be randomized as well, क्योंकि बैक्यू में एक ही वेब सर्वर पे सारे पेजेस हैं, तो उसी से सिलेक्ट करना। नाउ बैक्यू में भी कई इनवेरिएंट हो सकते हैं। सो ईच बैक्यू इज केप्ट नॉन एम्प्टी, ये हमेशा नॉन एम्प्टी होनी चाहिए व्हाइल द क्रॉल इज इन प्रोग्रेस। क्रॉलिंग यानी कि एक वेब सर्वर की क्रॉलिंग हो रही है, जहाँ एक वेब होस्ट की क्रॉलिंग हो रही है। सो व्हेन pu.ac.in की क्रॉलिंग हो रही है, तो इसके अंदर जितने पेजेस हैं वो सारे बैक्यू में विजिट करेंगे, वो सारे वेब बैक्यू का पार्ट होंगे। सो ईच बैक्यू कंटेन्स ओनली यूआरएल्स फ्रॉम ए सिंगल होस्ट। तो यानी जब हम वेब क्रॉलर इसको विजिट कर रहे हैं तो सारे के सारे बैक्यू में इसके पेज होंगे और उन पेजेस को ही विजिट करना है। किस ऑर्डर में करना है वो एक टेबल मेंटेन कर सकते हैं, एंड इन दैट टेबल वी कैन सी दैट कि इसमें टोटल भी किस क्यू को आगे विजिट किया जा सकता है। सो इस तरह से हमारे पास बी बैक क्यूज होंगे। सो बायस फ्रंट क्यू सिलेक्टर, इसको एक बैक क्यू सिलेक्ट करनी है, उसके पेजेस फिर सिलेक्ट करना। सो देयर विल बी अ फंक्शन बैक क्यू सिलेक्टर एंड दिस हीप कैन बी अ प्रायोरिटी हीप which may be min heap or max heap जो हम जनरेट करेंगे, एंड उसके बेस पे बैक्यू में से पेजेस उसी ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे। सो मे बी pu.ac.in का फ्रंट पेज विच इज नॉट अपडेटेड, बट इसका नोटिस वाला पेज अपडेट होता है, तो उसकी प्रायोरिटी हायर हो जाएगी। So this it has to understand over the period of time कि which page is being updated again and again and how to keep its priority higher than the normal page and accordingly the heap will be created. So next time this notices page may be visited
quite often as compared to the some static pages in the host. So static pages बार बार विजिट नहीं करने, जो पेजेस बार बार चेंज होते हैं सिर्फ उन्हीं को बार बार विजिट करने. So in that way back queues maintain for each host. So हर host की एक back queue maintain हो जाएगी. And K front queue के correspondingly हमारे पास B back queues आएंगी. So in this way the back queues are maintained. So one entry for each back queue. Entries at earliest time at which the host corresponding to the back queue can be hit again. So ये जो टाइम है कि कब दोबारा विजिट करना है ये प्रायोरिटाइज हमें करना पड़ेगा. So this need to be prioritized. And this earliest time is determined from the last access. कब access किया था, जहाँ कुछ heuristic हम choose कर सकते हैं. So we can see that ये सब कुछ research में open है. All these things are open in the research. And whenever, let's say you want to do a research, you can pick up a topic that how to maintain a back queue, how to better prioritize it, what could be the factor which can be used to prioritize it. जहाँ डोमेन स्पेसिफिक भी बनाते हैं हम. डोमेन स्पेसिफिक में क्या होता है, सपोज यू पिक अप एजुकेशन डोमेन. सो आपका जो क्रॉलर है विच इज है which visit only education based websites, जिसका काम है कि एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट को विजिट करना एंड उसके बेस पे जितने भी एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आना. और ये आपने कुछ वेबसाइट देखी भी होंगी मे बी ड्यूरिंग योर एडमिशन इन द जेईई मेन, एंड यू माइट हैव सीन दैट कि देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स which maintain admission related details from the various colleges or various other websites. तो वो ह्यूमन ऑपरेटेड नहीं है, उन्होंने क्रॉलर बनाया हुआ है which keep on visiting और जैसी अपडेट होती है they keep on maintaining it. So here you can do a research that how to maintain these back queues, कितनी होनी चाहिए. As I told you कि B back queue होनी चाहिए, but B एक्चुअल कितना होना चाहिए, B का नंबर डिटरमाइन करना वो भी एक रिसर्च इशू है. फिर उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना, दैट इज आल्सो रिसर्च इशू. एंड व्हेन योर क्रॉलर इज पिकिंग अप अ न्यू होस्ट, तो वो फ्रंट क्यू कैसे मेंटेन करेगा और फ्रंट क्यू में कितनी फ्रंट क्यू होगी. एज आई टोल्ड यू कि के होनी चाहिए, बट के का नंबर कितना होना चाहिए, अगेन दैट इज रिसर्च इश्यूज. Now all of these research issues either human can give their way to solve these things, or we can strategize them based on the content on the web. That is, we can generate some machine learning techniques. So some machine learning techniques which are nowadays used, and to teach the crawler that how to crawl and how to visit a particular website. तो वेबसाइट का कंटेंट देख के डिटरमाइन करना कि वो उसकी प्रायोरिटी कितनी है. So that we can learn using the machine learning techniques. So अगर कंटेंट में वर्ड्स को यूज करके या उनको देख के समझ के पता करना है कि कितना फ्रीक्वेंटली वो चेंज होता होगा. सपोज किसी कंटेंट में ऐसे वर्ड्स हैं which are telling the history of something. Obviously it is not going to change too often, but some content which is telling about the current affairs and जिसमें date involved है और current dates हैं, so with that may get changed quite often. So इस तरह से हमें machine learning techniques भी develop कर सकते हैं. So back queue processing कैसे होंगी, crawler thread seeking a URL to crawl, so it extracts the root of the heap. So it fetches URL at the head of the corresponding back queue. So lookup table से देखेगा and it checks if queue is now empty. So if accordingly it pulls the URL from the front queues. If there is already back queue for the particular host, उसी में append करता जाएगा and pull another URL from the front queue and repeat. So when queue is non-empty, create heap entry for it. So in this way, back queues are maintained. So number of back queues,
we have to keep all threads busy while respecting politeness. So इसलिए marketer recommendation 3 times as many back queues as crawler threads. अगर 10 crawler हैं तो back queues 30 back queues हो सकती है. सो हर क्रॉलर को यानी कि 3 बैक क्यू मिलेगी और उस यानी कि 3 वेब सर्वर पे वो एट अ टाइम जा रहा होगा. सो दिस इज रिकमेंडेशन इन मार्केटर स्कीम, बट दिस इज नॉट नीड नॉट टू बी फाइनल रिकमेंडेशन. यू कैन चेंज कि दैट योर क्रॉलर कैन विजिट even more than this and based on that you can maintain the more back queues. So then comes a connectivity servers. So connectivity servers are in between web server and web crawlers. So they support for fast query on the web graph. So connectivity server में क्या होगा, उनकी अपनी मेमोरी होगी और अपनी कैश होगी. So these are different from the proxy server और web servers. इन दोनों के बीच में we will have the connectivity servers. So connectivity servers क्या है? Proxy server is not going directly to the web server. Proxy server will connect to the connectivity server और connectivity server से पूछेगा कि मुझे वेब पेज विजिट करना है और connectivity server will allow कि वो कोई वेब होस्ट ज़्यादा बिजी है या नहीं है या alternate वेब सर्वर से लेके आना है. So usually ये जो connectivity servers हैं they are maintained by each of the वेब सर्वर. जैसे अभी पीयू के अंदर भी हमने कनेक्टिविटी सर्वर मेंटेन किए हुए हैं. सो वी वोंट अलाउ समवन टू कम डायरेक्टली टू आवर वेब सर्वर बिकॉज इट मे हैव द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. हमारा वेब सर्वर बिजी हो सकता है तो हम उसको कनेक्टिविटी सर्वर पे रोक देते हैं. सो इट स्टोर्स मैपिंग इन द मेमोरी फ्रॉम यूआरएल टू ऑटो लिंक्स, यूआरएल टू इन लिंक्स. सो कनेक्टिविटी सर्वर्स का मेन काम है क्रॉलिंग को कंट्रोल करना, वेब ग्राफ का एनालिसिस करते रहना, क्रॉल को ऑप्टिमाइज करना एंड देन लिंक का एनालिसिस करते रहना. सो कनेक्टिविटी सर्वर सिट्स इन बिटवीन द यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है ब्राउजर और ब्राउजर ऑब्वियसली प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा है एंड जो एक्चुअल वेब सर्वर जो होस्ट कर रहे हैं उनके बीच में होगा. एंड then there is a very good research paper which is published by Boldy and Wigner. So this is the one of the very highly cited published work. So they given a concept of these web graphs that which is maintained by the connectivity servers. So these are set of algorithms. So initially when they gave it, so they gave in the Java implementation, but now implementation in other languages is also available. So their main aim was to maintain a web graph at the connectivity server. So all the adjacent node, so they are listed in the memory. So suppose particular website pu.ac.in. So whenever along with this one adjacency matrix is maintained, यानी कि एक ग्राफ बना के रखा हुआ है कि इसके साथ और कौन-कौन से पेजेस विजिट करने. जैसे पीयू की के साथ यूआईटी का पेज भी शायद लिस्टेड हो, इसमें हो सकता है. एंड मे बी कुछ और जो पीयू के साथ विजिट हमेशा होनी चाहिए, तो एक एडजेसेंसी लिस्ट मेमोरी होगी, एक ग्राफ होगा. यानी अब एक वेबसाइट सिंगल नोड की तरह एक्टिव करेगी, उसका एक एडजेसेंसी लिस्ट का ग्राफ होगा और जब इसको विजिट करना है तो पूरा ग्राफ ही विजिट करना है, तो सबको इकट्ठे विजिट करना बिकॉज सो दैट काइंड ऑफ ग्राफ वुड बी मेंटेन. यानी कि एक तरह के नेबर्स जितने भी हैं वो मेंटेन करेंगे. एंड वी अज्यूम ईच यूआरएल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर. तो अगर 4 बिलियन वेब पेजेस हैं उनके लिए हमें 32 बिट्स पर नोड चाहिए. एंड ऑब्वियसली 32 बिट्स नहीं, हमें अराउंड 64 बिट रखते हैं हर वेब पेज के साथ और इसके साथ एक एडजेसेंसी लिस्ट बना के रखेंगे कि जब भी इस पेज को विजिट करना है उसी वेब सर्वर पे, सेम वेब सर्वर पे बाकी ये वाले पेज भी विजिट करने ही करने, बिकॉज दीज आर क्वाइट ऑफनली एक्सेस्ड. सपोज Microsoft.com विजिट करनी है तो Microsoft.com के साथ उसके ये 4-5 पेज भी साथ में लेके आने. सो दिस काइंड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट नीड टू बी मेंटेन.
इससे ओवरऑल बर्डन ऑफ वेब crawler will be reduced, overall burden on front queue management and back queue management will be reduced. एंड adjacency लिस्ट अब काफी बड़ी भी हो सकती है कि एक पेज के साथ हमें ये 10 पेजेस लेने हैं या 100 पेजेस लेने हैं, तो इनको हम कंप्रेस करके भी रख सकते हैं। एंड सो व्हाट दे मेंटेन इज कि सिमिलर पेजेस जो एक जैसे हैं उनको इकट्ठे विजिट करना है, जो एक ही लोकेलिटी में नियर बाय पेजेस हैं, जो अगर यूजर कभी भी microsoft.com पे जाता है तो मे बी वो जॉब्स वाले पे भी क्लिक करता है, कैरियर्स वाले पे भी क्लिक करता है, तो उन पेजेस को साथ ही विजिट करना है। एंड इन पेजेस में आपस में गैप कम रखना है और इनको सॉर्टेड लिस्ट में रखना है। एंड जो भी गैप है इन पेजेस में उनको मेंटेन करना है। सो इट मीन्स कि वेन एवर यू आर विजिटिंग एनी वेबसाइट, so Boldy and Wigner, so they suggest that do not visit single page but a graph around that website. उसके सारे नोड विजिट करो आप एंड उन सबको आप स्टोर करके रखो। डू नॉट कंसीडर कि एक पेज एट टाइम करना है, उसके नियर बाय पेजेस को भी विजिट करना है एंड दैट इज मेंटेन यूजिंग द एडजेसेंसी लिस्ट, वो मेंटेन करेंगे। सो इस तरह से जैसे स्टैनफोर्ड.edu को विजिट करना है तो उसके साथ ये सारे पेजेस विजिट करो। सो इस तरह से लिस्ट मेंटेन हम की जा सकती है, विच इज मे बी ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा, अगेन प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एंड दैट आल्सो कैन बी यूजिंग सम ह्यूरिस्टिक दैट कैन बी प्रायोरिटाइज, कि जब भी एक पेज विजिट करना है उसके साथ के सारे विजिट करना है। सो हर यूआरएल का एक एडजेसेंसी लिस्ट होगी and adjacency list of node is similar to the 7 preceding URLs। और जैसे पहला पेज उसके साथ ये पेज विजिट करते हैं या ये इसके साथ ये करते हैं। सो इन दिस वे वी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्मेट एक adjacency list which represent, ये नंबर क्या है एक्चुअली यूआरएल को 64 बिट नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तो जैसे जस्ट फॉर शोइंग आई हैव शोन 4 8, but actually these are the URLs numbers which need to be visited along with the first page, so that need to be maintained। ये क्लियर है सबको? ईशानी, अंजुम, is any query from this? साहिल, सृष्टि, श्रुति? Yes sir, clear। सो आज हमने जो डिस्कस किया है कि मेन वेब क्रॉलर्स के ऊपर हाउ टू मेंटेन दिस। सो बेसिकली यू हैव टू नो कि मर्केटर स्कीम एंड फ्रंट क्यू और बैक क्यू क्यों मेंटेन करनी है। एंड लास्ट आई टोल्ड यू कि एक पेज की बजाय बोल्डी बिजनेस सजेस्टेड कि उसके एडजेसेंसी लिस्ट को भी विजिट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्रॉलर की एक देखेंगे जो पेज रैंक एल्गोरिथम है गूगल का, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है।